सो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर जूही गुप्ता हैं, जो कि हमारे ही सीनियर हैं स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस से, जिन्होंने हाल ही में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है प्रोफेसर आईएस ठाकुर के अंडर में। और उनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो था मेटाजीनोमिक एंड कल्चरल अप्रोचेस टू स्टडी द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिग्रेडेशन ऑफ recalcitrant ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये उनका पीएचडी का टॉपिक था एंड ही इज अ जीनियस इन microbiology and ecology topics. So she will be guiding you throughout the process of our entrance exam on different topics of biology that is coming in your exam. So now I hand over to Dr. Jui Gupta and to proceed his lecture. So all the best, aspirants. Good morning, everyone. My name is Joohi, and I'll be guiding you, like, rather than making it a theory session, I'll be majorly guiding you how you're going to prepare for the exam. And just because my particular interests are towards microbiology and ecology, so we'll be talking more about that. However, I'll be discussing other aspects as well. So I'll just share the PPT first, and let's just start focusing over the topic. Just keep your chat box handy, just because I'll be asking some things as well. So I want you can just unmute yourself as well if you want to, but I can read it in the chat box as well. So there'll be questions I'll be asking, and just be very responsive towards it. Just because I don't want to make it a boring theory session, I want to make it more interactive, and I want to actually learn where you guys are much more confused towards the exam. Ki kya difficult lag raha hai, kya nahi lag raha hai, and what are your thoughts regarding the exam, how you're going to prepare for it. So let's just begin first. First of all, as I just mentioned, that we'll be covering over microbiology and ecology. So going further, so first one, like, I'm just giving you a brief on your preparation, because I feel rather than just focusing on the topic, you should be aware of these facts as well, just because these are going to prepare you better, not just for microbiology and ecology, but for others, like for other subjects as well. So first and like foremost for me, it worked as like I gave the master's entrance as well, I gave the PhD entrance as well. So what worked for me specifically, I was completely focused on the subjects area of class 11th and class 12th. Class 11 में physics, chemistry, biology, similarly class 12 में physics, chemistry, biology. उसमें जो टॉपिक्स हैं उसका एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए. जैसे let's talk about chemistry, right? So in chemistry, there is a chapter which deals with acid and bases, right? So acid और bases के बहुत definitions हैं. According to like different scientists, अलग-अलग नामों से आपको acid define करा जाता है. जैसे कोई acid define करता है with the concentration of hydronium ions. कोई define करता है acid with the help of like electron transfer. So आपको वो basic definitions पता होनी चाहिए. We are not going very deep into it. Similarly, pH के related questions होते हैं. So pH में भी they'll not ask something like really complex जो बहुत easily आपसे solve नहीं होगा. So ऐसे questions बहुत ज़्यादा deep नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बहुत basic सा say a solution A has pH this. Now it's getting mixed with like you're mixing that solution A into B with the pH this. So what's the final pH? So this is something when you learn about the pH concept, the molar concept, these are the questions which actually arises on the very first row. So ऐसे easy questions हर किसी chapter के 11, 12 में आपने जो कुछ पढ़ा है, मेजर फोकस वैसे भी लाइक जो मैंने अभी आपको चैप्टर बताया एसिड बेसिस या फिर केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे बहुत छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो मतलब जस्ट गिविंग अ फेयर आइडिया कि ऐसी चीजों को पहले से ही इस चीज के लिए मतलब प्रिपेयर करके रखो. और जैसे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में देयर इज एनिमल किंगडम, राइट? सो दे माइट आस्क यू कि स्पंजेस किस सेक्शन को बिलोंग करते हैं, फिर कुछ मतलब किस पर्टिकुलर देयर इज गिवन फोर ऑप्शन एंड यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट वो किसको बिलोंग करते हैं. तो स्पंजेस किसको बिलोंग करते हैं, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपॉड्स किसको बिलोंग करते हैं. मे आस्क मतलब नॉट रियली श्योर बट या मे आस्क ह्यूमंस किसको बिलोंग करते हैं. So these are the few questions you should be focused upon, and I'm just while saying that you should focus on 11th and 12th class syllabus. This is I'm stressing over this majorly because
एक rather than just because those who are preparing for masters entrance, उनके केस में क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, सो आपका एक बेसिक बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करी जाती है. सो बेसिक बैकग्राउंड ऑब्वियसली आपकी 11-12 से ही चेक होती है, राइट? सो दैट्स द मेजर रीजन कि आपको 11-12 का सारे चैप्टर्स का एक बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. दैट विल हेल्प यू टू गो फॉर अ लॉन्ग वे. Next, what I'll say is do as many as previous year questions, as many as possible, right? JNU का entrance बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि मतलब obviously आप अगर DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके अलग सेट ऑफ क्वेश्चन है, उनका अलग सेट ऑफ माइंड जिस तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं. बट सिमिलरली जब JNU के लिए प्रिपेयर करोगे, हल्का सा क्योंकि यहाँ के टीचर्स रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे जब PhD का एंट्रेंस दे रहे हो, तो वो अपनी अपनी रिसर्च में जो कुछ करते हैं उसका बेसिक सवाल पूछ सकते हैं आपसे. रीजन बीइंग कि ऑब्वियसली if you're giving a PhD entrance, you're supposed to get into research lab someday. So obviously आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए. So आपसे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो वो क्या पूछेंगे, उसका एक सबसे अच्छा तरीका, एक सबसे अच्छा आइडिया लगाने का तरीका होता है आप मैक्सिमम JNU के एंट्रेंस के पुराने सवाल जितने कर सकते हो उतने कर लो. इससे एक फायदा ये होगा कि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा. एंड एट द सेम टाइम भले ही हो सकता है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम पूछे ना जाए. There are fair chances कि ठीक है, they might not repeat the question and might be like they might repeat the questions, but this is surely going to boost your confidence. So एक पेपर का मतलब this is my thinking कि while you're cracking an exam, confidence is also one of the most or like it's a major key. While you're preparing for it, you're doing a number of stuff. You're learning so many chapters, you're doing so many numericals, but at the same time, when you're like confident enough while giving the examination, that matters as well. So वो कॉन्फिडेंस कब आएगा जब थोड़ा सा आप पहले से प्रिपरेशन से भी जितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही करके गए हो. सो दैट कॉन्फिडेंस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन योर एग्जाम पेपर. सो एक फायदा ये आपको होगा. और ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पता लग जाएंगे थोड़े से. हर टीचर का अपना रिसर्च एरिया है, हर टीचर का अपना रिसर्च एक्सपर्टीज है, तो वो थोड़ा बहुत उसका बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं. एंड आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से केमिस्ट्री वाले क्या पूछ रहे हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले क्या पूछ रहे हैं, जियोलॉजी बैकग्राउंड वाले क्या पूछ रहे हैं. So like just have a fair idea of it. इसलिए एग्जाम पेपर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए लाइक लेट्स जस्ट डिस्कस अ शेड्यूल कि आप दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो JNU के, लाइक यू आर जस्ट डेडिकेटिंग एन आवर टू JNU के एग्जामिनेशन. Right. At the same time, just ensure this that you're dedicating some time to crack or like to do the exam papers as well, the previous year exam papers as well. So एक fair idea भी मिलता रहेगा and that will just boost your confidence as well along the way that you're preparing as well as you're solving some questions too. And last, again, it will actually help you to know the weightage of each section. अब हम माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं. मैंने भी इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलने के बाद ही अपना प्रिपेयर किया कि मेरे को आपको क्या बताना है. सो माइक्रोबायोलॉजी की किसी पेपर में वेटेज लाइक 3-4 क्वेश्चंस है, किसी केसेस में एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जैसे इकोलॉजी है सिमिलरली किसी पेपर में काफी क्वेश्चंस है, किसी पेपर में सिर्फ एक ही सवाल है. सो पुराने पेपर्स करने का एक ये भी फायदा मिलेगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है. यू माइट बी गुड एट फिजिक्स, यू माइट बी गुड एट केमिस्ट्री बट नॉट एट बायोलॉजी. तो आपको ये पता करना है कि बायोलॉजी में भी किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है. अब आप पढ़ रहे हो लाइक आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, लेकिन आपने पेपर्स में पैटर्न देखा एनिमल किंगडम से सवाल ही नहीं आ रहे. सो ऑब्वियसली अगेन क्वांटिटी स्टडी नहीं, क्वालिटी स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. एंड वो क्वालिटी स्टडी कब होगी जब आप प्रीवियस ईयर पुरानी चीजों से सीखोगे, पुरानी चीजों से एक फेयर आइडिया लेके अपना कुछ प्रिपेयर करोगे, देन देयर आर चांसेस दैट यू विल एक्चुअली क्रैक द एग्जाम इन अ राइट मैनर. So this is what I'll actually brief on preparation part. Next, going further, this is the part that we'll actually focus on. Microbiology में क्या पूछ रहे हैं and ecology में क्या पूछ रहे हैं. So first of all, microbiology में what I did, I am just going to brief upon it क्योंकि उससे मेरे research lab का पता लग जाएगा कि मेरे research lab में क्या interest रहते हैं and what we actually focus upon. So first of all, I'll just ask the first question that what is microbiology according to you. So any one of you can unmute yourself and कुछ भी गलत सही जो समझ में आता है आपके हिसाब से कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं. I just want an answer. So anybody unmute yourself and just microorganisms. Yeah, microorganism. Like what do you understand by microbiology में करते क्या है? Microorganisms से क्या? Basically I guess उनका सब कुछ, उनका मेटाबॉलिज्म या फिर हम ह्यूमंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. Correct, perfect. Everything. So
I'll just again say this कि microbiology it's like the branch of biology. Biology की एक sub branch है. Is the branch of biology which deals with microorganisms, and microorganisms majorly are those obviously which are not visible to the naked eye, right? आप उसके केस में माइक्रोस्कोप वगैरह से उन्हें इवैल्यूएट करते हो. सो माइक्रोबायोलॉजी में मेरी लैब में मैंने एग्जैक्टली क्या किया था. सो जस्ट अ ब्रीफ ऑफ इट. सो वी वर्क ओवर टुवर्ड्स द वेस्ट साइट्स, जैसे लैंडफिल साइट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट साइट या सीवेज प्लांट, इन जगहों पे से सैम्पलिंग करी जाती है. सैंपल में कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी स्लज, इट कैन बी सॉइल, कंटामिनेटेड सॉइल, एंड इट कैन बी लाइक सेडिमेंट सैंपल एज वेल. सो उसको मतलब देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसके बाद उसे इनरिच करते हैं. देन उस एरिया में एक मतलब we actually focus upon कि microbes हर जगह exist करते हैं, right? They exist at the good places, they exist at the bad places, they exist at the stressed places as well. एक ऐसी जगह जैसे लैंडफिल साइट है, इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा हीट होती है वहां पे कि खुद भी कई बार वहां पे नेचुरल फायर लग जाती है अपने आप. सो ऐसी एरिया में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर फ्लरिशिंग एज वेल. सो ऑब्वियसली दैट्स एन एस्टोनिशिंग थिंग. सो हम ये कोशिश करते हैं उस जगह से कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद वी इनरिच इट इन आवर लैब्स, एंड देन वहां से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं टू एक्चुअली नो कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऐसी जगह पे भी जी पा रहे हैं. Like they're flourishing, they're surviving. So there are like certain genes which are responsible for them to survive. So उन पे फोकस करने का काम होता है. So just a brief, we extracted a sample from a landfill site in my case. Then we enriched it in the presence of certain compounds, like just because मेरा focus था that we want to degrade a pesticide. Pesticides obviously illegally बहुत ज़्यादा use हो रहे हैं and they are deteriorating the environment as well as the mankind. So focus ये रहता है कि finally हमने उसे वहाँ से extract किया, microorganisms ढूंढे उसमें से, जो मिले उनको अलग अलग चीजों की प्रेजेंस में एनरिच करा, लाइक टॉक्सिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस में एनरिच किया, एंड देन फाइनली वंस वी वर सैटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया और अ पर्टिकुलर स्ट्रेन, उस पे काम करना शुरू किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज किया, जैसे किस टेम्परेचर पे सबसे अच्छा ग्रो करेगा, किस पीएच पे सबसे अच्छा ग्रो करेगा, या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन उसके केस में क्या होनी चाहिए. सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स यू मैनेज व्हाइल यू आर ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रेन. Once the strain was optimized, उसके केस में फिर अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर सेक्शन आता है, जिसके केस में आप उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, डीएनए को पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई करोगे, एंड एम्पलीफाई करने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई करवाते हो. तो 16S RNA सीक्वेंसिंग करवाई जाती है, एंड देन यू गेट टू नो कि वो कौन सा स्ट्रेन है. कई बार क्या होता है कि स्ट्रेन आपको बड़ा कॉमन से मिलता है, जैसे बैसिलस मिल गया. बैसिलस इज सच अ बैसिलस मिल जाता है. सो अगेन इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आपको एक कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रेन मिला है, बट अगर आपको एक नोवेल स्ट्रेन मिलता है, समथिंग दैट्स नॉट रिपोर्टेड वेरी इजीली, जैसे मेरे केस में आई गॉट अ स्ट्रेन व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली नोवेल बट ऑब्वियसली इट इज नॉट रिपोर्टेड इन अबंडेंस. सो जो मेरा स्ट्रेन था इट वाज फेयरली न्यू. सो दिस इज समथिंग जहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है. सो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट्स कंप्लीटली और फेयरली न्यू. तो आप उस पे फाइनली उसको टिप से टो तक पूरा एनालाइज करते हो कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हाउ कैन आई यूज दिस स्ट्रेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. सो जो स्ट्रेन मिला, उस स्ट्रेन को फाइनली एक पेस्टिसाइड, कार्बोफ्यूरिन, सो इट्स अ कार्बामेट पेस्टिसाइड, जो मैंने उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने के लिए उस बैक्टीरिया को यूज किया. So I used it and the degradation was fairly good. It was more than 95%. So again, a very high or very significant percentage. And additionally, the bacteria was providing us dual benefit. It was eating that pesticide for its growth, and at the same time it was making a byproduct which was useful for us. So बैक्टीरिया के केस में जब हम उसका मेटाबॉलिज्म मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो कोई अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा हमें. तो वो प्रोडक्ट के लिए भी हम सेकेंडरीली मतलब पूरा एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट को. मेरे केस में अगेन इट वाज गिविंग अ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल पॉलीमर्स में ना, लाइक आपको अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे आई कैन नेम फ्यू. जैसे बायोसर्फेक्टेंट बनाते हैं बैक्टीरिया, बायोप्लास्टिक बनाते हैं बैक्टीरिया, सैकराइड्स बनाते हैं जिसमें एक्स्ट्रासेल्युलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ईपीएस बोलते हैं उन्हें. सो दीज हैव डिफरेंट बेनिफिट्स. ये सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, इनके बहुत सारे काम होते हैं. जैसे बायोप्लास्टिक तो आपको आई बिलीव इट्स गिविंग अ फेयर आइडिया बाय द नेम कि प्लास्टिक है जो डिग्रेड हो जाती है. बायोप्लास्टिक 120 दिन के अंदर अंदर डिग्रेड हो जाती है. सो दैट्स अ गुड कंपाउंड, राइट? इट्स वेरी यूजफुल फॉर द एनवायरमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ईपीएस है, इट्स गुड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. वो डाई रिमूवल में बहुत काम करता है. जैसे आपका कोई पर्टिकुलर पानी पल्यूट हो गया है, इट इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ डाई, अगर आप उसमें ईपीएस डाल दोगे, सो ईपीएस हैज द चिलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड ईपीएस में से खींच लेता है वो चीजें.
डाई निकाल देगा. सो these are the different things that I worked upon. And then finally आज के टाइम पे बूम चल रही है पूरी की पूरी. You don't focus only over the culture dependent things. जैसे मैंने क्या किया, मैंने सॉइल कलेक्ट करी, मैंने उसे इनरिच करा लैब में, एंड देन फाइनली उसको यूज किया अपने अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को. तो ये मैंने सब कुछ लैब में किया, मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया, राइट. बट देयर आर थिंग्स जिसके केस में आपको लैब के मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, कल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. सब कुछ सारा का सारा कल्चर इंडिपेंडेंट होता है, जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के अंदर कंसीडर करते हैं. सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं और एवरीथिंग इज कल्चर इंडिपेंडेंट. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपेंड ऑन मीडिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपेंड अपॉन योर लाइक डिफरेंट केमिकल्स. आपको सीधे सीधे उसका न्यूक्लियोटाइड निकाल के आपको सीक्वेंस करना होता है, जिसमें आप डीएनए भी यूज करते हो, आरएनए भी यूज करते हो, अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, एंड देयर डिफरेंट ब्रांचेस. सो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दैट. बट उसमें आप क्या करते हो, जैसे मैंने अपनी साइट के लिए किया, मैंने बैक्टीरिया निकाले, दैट वाज वन पार्ट. बट एज द पीएचडी टॉपिक सेज, मेटाजेनोमिक एंड कल्चरल अप्रोचेस. सो कल्चरल अप्रोचेस तो वो जो मैंने बैक्टीरिया निकाले, मेटाजेनोमिक वो मैंने उस साइट का पूरा सैंपल करने के बाद उस सैंपल में से पूरा डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंस करवाया है. सो उस सीक्वेंसिंग में जो बैक्टीरिया प्लेट पे नहीं आते हैं, मीडिया पे नहीं आते हैं, लैब में नहीं निकाल सकते, वो भी पता लगते हैं. सीक्वेंसिंग में सारा का सारा डीएनए स्टैक किया जाता है, एंड सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ATGC व्हाटएवर द पैटर्न इज, आपको सारा पता लग जाता है. एंड देन एक एस्टैब्लिश लाइब्रेरी के अगेंस्ट सारे बैक्टीरिया, सारे एल्गी, सारे फंजाई, सारे वायरस, सारे यूकैरियोट्स, सब कुछ निकाले जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रीम जो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है. एट द सेम टाइम कि आप अगर लाइक टू ऑल दोज हु आर पीएचडी एस्पिरेंट्स, जब कल को आप रिसर्च टॉपिक पे फाइनली काम करना शुरू करते हो, सो ऑब्वियसली PhD is a long journey, right? 5 years का बहुत लंबा समय हो जाता है. So obviously try to like put your legs in different spaces. कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. So people apply for scholarships, fellowships. So fellowships में somebody who's like going for the biology background, उनके केस में जब आप प्रपोजल लिखते हैं ना, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए लिखना होता है कि आप ऐसी कोई चीज पे फोकस करो which is more concerned towards the recent development. कोई recent field पे काम कर रहे हैं आप, जो पहले से चल रहा है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लिया जाता है. सो ऐसे केसेस में आपको फेलोशिप्स में भी ऐसी चीजों के जस्ट लाइक टेलिंग दिस पॉइंट कि ऐसी चीजों को फोकस करते हुए यू राइट दोस प्रपोजल, एंड देन सच थिंग्स आर लाइक readily accepted. You will be like selected very soon for those. Okay, so that is what I did in my PhD. Next we are just going to I'm just going to ask you questions. सब लोग थोड़ा थोड़ा सा फेयर आइडिया मुझे देते चलो. सो माइक्रोबायोलॉजी में अगेन जो कुछ भी मैंने किया है, दिस इज वेरी लाइक डीप एंड रिसर्च बेस्ड हो गया वो सारा का सारा. आपको क्या करना है, अपनी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैक्टीरिया आइसोलेट किया था, एंड देन जैसे बैक्टीरिया आइसोलेट करने के बाद इनरिच करने के लिए अलग अलग मशीन्स होती है. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक द बेस्ट थिंग टू इनरिच अ पर्टिकुलर स्ट्रेन. सो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे अच्छा तरीका लाइक सबसे बेस्ट होता है कीमोस्टैट. सो कीमोस्टैट के अंदर बैक्टीरिया को एनरिच किया जाता है, एंड फर्दर फिर फाइनली आइडेंटिफाई वगैरह होगा, एंड देन प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सो उन बेसिक क्वेश्चंस में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ मेरे सामने हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम ऑल टुगेदर. एंड देन वंस वी आर थ्रू विद दिस, वी आर गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग. माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी के अलावा क्वेश्चंस में अगर आपको पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना है कि कोई पर्टिकुलर चीज अटक रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क द जनरल क्वेश्चंस एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक इट. So what's the difference between a prokaryotic and a eukaryotic cell? It's a very basic thing. माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहली चीज यही आती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस. एक बेसिक, इससे पहले भी एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सुना होगा. 5 किंगडम के हिसाब से RS विटेकर का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सुना होगा. सो मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप पहले से प्रिपेयर रहो. डीप कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कोई पूछा भी गया तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड समथिंग टू चेक योर बेसिक बैकग्राउंड. So yeah, RS Whittaker का 5 kingdom classification, you just told it. So let's just begin with this first one. What's the difference with prokaryotic and eukaryotic cell? Anyone? Unmute yourself and let me know. Prokaryotic organisms are the single-celled organism with naked nuclei. Okay. And eukaryotic? Eukaryotic cells are the multicellular organisms which present vertebrates, higher level of organisms. Okay.
Anyone else? कोई और difference? Unicellular, multicellular के अलावा कोई और example, मतलब कोई और difference? Anybody else? Just be quick. गलत सही की टेंशन नहीं है. We are not taking an examination. We are just being an interactive session ताकि it should not be very boring and actually अपना solve कर पाओ. So anything जिसको जो कुछ याद आ रहा है. Okay. I'll just show it to you then. So prokaryotes, eukaryote, this is the basic difference. जैसे nucleus prokaryotes में absent होता है, eukaryote में होता है. Membrane bound organelles prokaryote में absent होते हैं, eukaryotes में present होते हैं. Cell structure, prokaryotes majorly unicellular होते हैं और eukaryotes majorly multicellular होते हैं. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि eukaryotes like which of the following statement is true for eukaryote and नीचे लिखा हुआ है they are unicellular, they can be multicellular, A and B और या फिर none. तो A and B is right. यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर होते हैं जनरली. सेल साइज ऑब्वियसली प्रोकैरियोट छोटे होते हैं, यूकैरियोट बड़े होते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट सिंपल होते हैं, यूकैरियोट्स में जस्ट बिकॉज इतना सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इतना सब कुछ सिस्टम चल रहा होता है, सो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. डीएनए का फॉर्म प्रोकैरियोट्स दे हैव अ सर्कुलर डीएनए एंड यूकैरियोट्स के केस में दे हैव अ लीनियर डीएनए. एग्जांपल लिया जाए तो प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आता है, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, और यूकैरियोट्स में लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट. दैट्स इट, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज आई जस्ट मेंशन, माइक्रोब्स जो होते हैं नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मैग्निफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो कौन सी मैग्निफिकेशन पे आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने शुरू हो जाते हैं? 45x. ओके, एनीबॉडी एल्स? राइट, की पार्टिसिपेटिंग या ऐसे लाइक सिर्फ सेशन स्टार्ट करने का कोई फायदा थोड़ी है. कुछ भी गलत सही बोलने से कुछ होगा थोड़ी. Nobody is judging here. They are visible on 40x, but we usually see them on 100x ताकि और ज्यादा हमें क्लियर दिख सके. Okay. Okay. Just one more answer. कोई और, एक और बच्चा अनम्यूट करो and just let me know. एक बार और and then I'll just answer it. Anybody? अच्छा, चैट बॉक्स में लिख दो, कोई बात नहीं. ऐसे नहीं बताना तो चैट बॉक्स में आंसर करो. Cool, I can. Okay, I'll just answer it then. So you were right कि 40x पे सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है. तो 40x पे आपको ना सेल दिखना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया का. लाइक माइक्रोब्स के केस में आपको सेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा. बट जब आप उसकी फर्दर मतलब आप उसके ऑर्गेनिल्स देखना चाह रहे हो, उसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है वो देखना चाह रहे हो, तो 100x पे जाते हैं. एंड अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में जानना है, आप मतलब जैसे अभी आप ऑर्गेनल देख रहे हो तो आप 100x पे हो, लेकिन उसके बाद भी आप फर्दर उस ऑर्गेनल के अंदर भी जाना चाह रहे हो, देन आपको 100x से भी आगे जाना पड़ेगा. सो राइट, मैंने आपको 3 तरीके के वेरिएशन बता दिए. 40x इज द मोस्ट कॉमन वन. 100 विल हेल्प यू टू सी द ऑर्गेनल्स एंड द नेक्स्ट वन इज टू सी मच मोर डिटेल्स. हालांकि इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा. ऑप्शन दिया जाएगा 40x 100x टाइप. सो अगर ऑर्गेनल्स पूछ रहे हैं सो गो फॉर 100 एंड जस्ट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, हाउ इट इज लुकिंग लाइक, सो डेफिनेटली 40. Next, let's go for again a common question. What is the result of gram staining in case of gram positive and negative bacteria? So there's a technique called as gram staining जो यूज करी जाती है to identify कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. So what do you think? ग्राम पॉजिटिव में क्या रिजल्ट आता है स्टेनिंग का? And like just first of all पहले let us know कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, ये किस किस को पता है? Answer in chat box, unmute yourself, whatever feels comfortable. And nobody is judging. Please don't feel anything. So कुछ भी chat box में लिखना चाहो chat box में लिखो, या unmute करना है unmute कर लो. But let me know answer कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ये पता है किसी को? Gram staining nothing but to visualize the microorganisms. Yeah, it actually helps in visualization only, but it's like a differentiation technique. एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप ये पता कर पाते हो कि कौन कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है. So obviously you're using a dye जिसे क्रिश्चियन ग्राम के नाम से मतलब जिसका नाम क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे इंड्यूस हुआ था, तो इस वजह से उसे ग्राम स्टेनिंग के नाम से जानते हैं. So you use a dye called as crystal violet. हाँ, yes, Shivani, that's actually right. Differential staining.
सो आई जस्ट लेट यू नो कि हाउ इट हैपेंस एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि, और बहुत बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, कभी भूलना नहीं चाहिए, एंड दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड इट, कि जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो आप, दोनों मान लो आपके पास एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक ग्राम नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, स्टेन करते हो क्रिस्टल वायलेट से। तो क्रिस्टल वायलेट जैसे ही होगी ना, तुरंत मतलब क्रिस्टल वायलेट की वजह से वो सेल ना उसका कलर पकड़ेगा, इट्स अ लाइट पर्पलिश कलर, तो दोनों सेल वो कलर पकड़ लेंगे। देन आप उसको स्लाइड पे फिक्स कर चुके होते हो, आप सेल को स्लाइड पे फिक्स करने के बाद आपने पहला स्टेनिंग करी तो पर्पल पर्पल कलर हो गया। नेक्स्ट आप उसको वॉश करते हो। जब आप उसे वॉश करते हो ना, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उनके अंदर, उनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, दैट हैज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ लिपिड्स, दैट हैज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ लिपिड, जिसकी वजह से जो स्टेन है क्रिस्टल वायलेट वो धुल जाता है जैसे ही आप उसे वॉश करते हो। तो पहले वाला जो ग्राम पॉजिटिव है उस पर तो चढ़ा रहा क्योंकि उसके पास लिपिड का कंटेंट कम है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसके केस में लिपिड कंटेंट हाई होने की वजह से वो स्टेन धुल जाता है। धुलने के बाद आप नेक्स्ट उस पर डालते हो सेफ्रेनिन, रेड कलर का एक स्टेन होता है। तो जो पर्पल था वो पर्पल का पर्पल रहता है, लेकिन जो दूसरा धुल गया था वो रेड कलर का हो जाता है। सो रिजल्ट क्या हुआ कि अगर स्टेन जो है ग्राम नेगेटिव है, इट विल शो यू अ रेड कलर एंड मतलब आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग, एंड अगर आपका स्टेन ग्राम पॉजिटिव है तो इट विल स्टे पर्पल, इट विल स्टे अ लाइट पर्पलिश और लाइट वायलेट कलर। सो दैट्स इट। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग कि रेड दिखेगा कि वायलेट दिखेगा। द लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन्स के केस में लिपिड का कंटेंट बहुत हाई होता है, सो दैट्स व्हाई दे डोंट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन एंड दे फाइनली गेट स्टेन्ड बाय द रेड वाला स्टेन, तो इसलिए वो लाल दिखते हैं और दूसरे वाले पर्पल ही रहते हैं। Okay, next one. What is the most common sterilization technique used in laboratories? Explain it. So, obviously, autoclave. Yes, it is. Before like explaining it, I'll just mention कि जैसे आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में इतने सारे माइक्रोब्स के साथ आप काम कर रहे हो और माइक्रोब्स के साथ आप काम तो कर ही रहे हो, एट द सेम टाइम जहां आप एग्जिस्ट कर रहे हो, जहां आप बैठे हो वहां पे भी कोई ना कोई माइक्रोब है, तो आपका कल्चर कभी भी खराब हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि प्योर कल्चर मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम है। आप जैसे ही उसको मतलब कोशिश करते हो उसे मेंटेन करने की, किसी से मतलब कंटैम होने के कोई चांसेस होते हैं, इसीलिए आप हमेशा एक लैमिनार फ्लो में काम करते हो। सो दैट जस्ट गोइंग डीप, वी आर नॉट गोइंग डीप दैट, बट इसलिए अलग अलग स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करी जाती है। जैसे आप लेमिनार में बैठते हो तो आप पहले अल्कोहल से पूरे पूरे सरफेस को वाइप करते हो, आप अंदर फ्लेम जलाते हो एक बर्नर पे, सो मतलब आप हीट जनरेट करके रखते हो। हीट में मतलब यू जस्ट एक्सपेक्ट कि हीट वाले मतलब जो बैक्टीरिया है, मेजर बैक्टीरिया जो है वो थर्मोटॉलरेंट नहीं होते हैं, हीट टॉलरेंट नहीं होते हैं काफी, मतलब वो अच्छे अच्छे मतलब स्ट्रेस वाले स्ट्रेन में, वो जनरल में आपको जो बेसिक आपके आसपास वाले माइक्रोब्स होते हैं वो ऐसे वाले नहीं होते हैं। सो उसकी वजह से आप हीट का स्टरलाइजेशन लेते हो, आप सरफेस स्टरलाइजेशन में अल्कोहल से पहुंचते हो, एंड इसी तरीके से एक स्टरलाइजेशन ये होती है दैट यू वर्क टुवर्ड्स लाइक ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है, स्टीम स्टरलाइजेशन करते हो। आप पानी लेते हो, पानी को स्टीम के टेम्परेचर पे लेके जाते हो एंड उस स्टीम से सारे के सारे सब्सटेंसेस को जो भी आपने ऑटोक्लेव में रखे होते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं, व्हाटएवर इट इज, यू जस्ट स्टरलाइज देम एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। So इसका आंसर हो गया मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन लैबोरेटरीज इज ऑटोक्लेव एंड इट इज आल्सो लाइक अ टाइप ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन। एंड द टेक्निक मतलब एक्सप्लेन तो मैंने बेसिक बता ही दिया आपको कि आप पानी यूज कर रहे हो, उस स्टीम के टेम्परेचर पे लेके जा रहे हो एंड देन फाइनली उससे स्टरलाइजेशन हुई है। कंडीशंस याद करने की बात है, ऑटोक्लेव में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कंडीशंस क्या होती हैं। सो कंडीशन इज दैट यू आर यूजिंग स्टीम at a temperature of 121 degree Celsius 121 degree. Yes. and 15 psi pressure. ओके, सो 15 psi प्रेशर आने दो, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने दो। ये जब प्रेशर और ये टेम्परेचर आ चुका होता है ऑटोक्लेव में, तो 15 मिनट के लिए आप वेट करते हो। उन 15 मिनट पे आप इसी प्रेशर पे मेंटेन करते हो ऑटोक्लेव को एंड देन यू रिलीज द प्रेशर एंड दैट्स व्हाई ऑटोक्लेव का स्टीम स्टरलाइजेशन वहां हो जाता है फिनिश। बहुत सारी चीजें ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करी जा सकती है बट कुछ नहीं करी जा सकती, तो उसके केस में आप फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज करते हो। जैसे अब आपसे अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए फर्दर, अगेन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बट हाँ एक बेसिक सवाल है कि how will you prefer to sterilize a compound or anything that is sensitive to heat? अब आपको पहले ही पता लग गया कि ऑटोक्लेव तो कर नहीं सकते, रीजन बीइंग हीट तो दे ही नहीं सकते, स्टीम से तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा। सो उस केस में वन ऑफ द लाइक वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इज फिल्ट्रेशन। आप उस कंपाउंड को फिल्टर कर सकते हो। सो फिल्टर करने के लिए अलग अलग फिल्टर पेपर आते हैं, साइज वेरी करता है। आपको बैक्टीरिया फिल्टर करना है, आपको चाहते हो कि आपके कंपाउंड में बैक्टीरिया का कोई कंटैमिनेशन ना आए, तो उस केस में आपका अलग फिल्टर पेपर का साइज हो जाएगा। उससे ज्यादा मोटे लाइक उससे ज्यादा मोटा पोर साइज भी मिल सकता है, उससे छोटा पोर साइज भी मिल सकता है।
सो फिल्ट्रेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक, अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव अगर आपको ऑटोक्लेव नहीं करना है। सिमिलरली माइक्रोब्स को जब हम मीडिया पे लेते हैं, लाइक मीडिया पे ग्रो करवाते हैं, एक पर्टिकुलर मीडिया देते हैं जिसके अंदर प्रोटीन का सोर्स होता है, कार्बन का सोर्स होता है, अलग अलग चीजें को कंपाउंड एलिमेंट्स का सोर्स दिया जाता है ताकि वो उसे यूटिलाइज करे, खाए एंड देन फाइनली ग्रोथ करे। सो देयर इज अ थिंग विच इज यूज टू, लाइक लिक्विड मीडिया भी यूज करते हैं, सॉलिड मीडिया भी यूज करते हैं। तो सॉलिड मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए, जैसे आपने लिक्विड मीडिया लिया, उसको अगर सॉलिड बनाना है, सो देयर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट वी यूज, दैट्स कॉल्ड एज अगार, राइट। सो इट्स लाइक जैसे आप लोगों ने जेली खाई होगी, राइट। तो जेली पाउडर जो होता है वैसे ही अगार पाउडर होता है, एकदम वैसा सी कंसिस्टेंसी रहेगी, नॉर्मल पाउडर होगा, एंड व्हेन यू मिक्स इट विद अ मीडिया तो वो एकदम सॉलिड होने लगता है, मतलब वो जेली जैसा एकदम कंसिस्टेंसी पकड़ लेता है। सो अगार यूज किया जाता है अगेन माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कॉमनली, जब भी सॉलिड मीडिया बनाना है तो अगार उसमें ऐड कर दिया जाता है। So again, a very common question. This agar that we use in microbiology so commonly is obtained from, there can be 4 options. It can be obtained from fungi. Seaweed. Seaweed, yeah, it's an algae, right? So जैसे exam में seaweed नहीं लिखा होगा, तो जैसे आपसे मोटा मोटा broadly पूछा जा रहा है कि algae है कि fungi है कि protist है, it can be anything, right? तो उस टाइम पे आपको तो जब ऐसे में ऐसे ऑप्शन दिए जाए, सो मैंने बोला ना आपको बेसिकली बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत मोटा मोटा पूछा जाएगा, जैसे सीवीड इज क्वाइट स्पेसिफिक, हो सकता है इतना ज्यादा डिटेल में पूछा ही ना हो। एलगी सीधे सीधे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, बट ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर होकर जा रहे हो, मैंने बोला दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। नेक्स्ट, जब मैंने आपको ये बताया कि हम कंपाउंड्स बनाते हैं, बैक्टीरिया जो होता है मैंने यूज किया था पेस्टिसाइड डिग्रेड करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने उसको इसके लिए भी यूज किया कि कोई बाय प्रोडक्ट दे दे मुझे। तो जब वो बाय प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट ह्यूमन यूसेज में भी काम आते हैं, जैसे ईपीएस जो बनाते हैं दैट इज यूजफुल इन कॉस्मेटिक्स, डेंटल फिलिंग्स वगैरह में, कॉस्मेटिक्स में बहुत काम आता है ईपीएस। लेकिन हम ह्यूमन पे कोई ऐसी चीज डायरेक्टली तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, ऑब्वियसली उसे पहले टेस्ट करना पड़ता है। सो टेस्ट कैसे करते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज सेल कल्चर। आप क्या करते हो, ह्यूमन की पर्टिकुलर किसी सेल से, जैसे लिवर का सेल ले लिया या फिर कोई लिवर की सेल लाइन ले ली या फिर कोई भी, मतलब दे कैन बी फ्रॉम एनी ऑर्गन, लिवर की ले सकते हो, ब्रेन की ले सकते हो, बहुत सारी सेल लाइन्स होती हैं। सो आप वो सेल लाइन लेते हो, उस सेल लाइन को उस कंपाउंड से ट्रीट करते हो, एंड देन अलग अलग मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप ये चेक करते हो कि ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक था कि नहीं। अगर सेल मर गए तो ऑब्वियसली टॉक्सिक है, आप यूज नहीं कर सकते उसे ह्यूमंस के लिए, और अगर सेल जी गए, सेल नहीं मरे, सो दैट्स इट, वहीं पे कंफर्म हो जाता है कि आपका कंपाउंड सेफ है यूसेज के लिए। सो दिस इज हाउ सेल कल्चर वर्क। सेल कल्चर में ये करते हैं। सो सेल कल्चर भी एक बहुत फेयर सी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसको मतलब काफी रिलेटिवली पूछा जाता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछ सकते वो आपसे, जस्ट बिकॉज अगेन इट गो इन डेप्थ, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अलग अलग मीडिया यूज होते हैं। I have one doubt. क्या सो See, why in autoclave, why we maintain a 121 atmosphere temperature and 15 lbs? Why we have to maintain at that temperature only? Okay, I'll just tell you that. So actually again ये भी रिसर्च बेस्ड ही है कि हमने पहले ऐसा नहीं किया कि मतलब पहले ऑब्वियसली स्टीम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही अचीव हो जाएगा, राइट, बट देयर आर स्ट्रेन्स जो उस पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे स्ट्रेन भी हैं जो 100 के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। सो एक फेयर अंदाजा लेते हुए, ऑब्वियसली जब वो टेम्परेचर आएगा तो 15 psi का प्रेशर मेंटेन अपने आप ही होने लगता है, वो प्रेशर तो आने ही लगेगा उसके आसपास। लेकिन आपकी बात सही है कि हम 121 पे क्यों जा रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज हम एक फेयर अंदाजा लेते हुए चलते हैं कि इस तक, मतलब इस टेम्परेचर तक मोर और लेस अराउंड 99% स्ट्रेन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मतलब वी आर गोइंग फार बियॉन्ड 100 एज वेल। गॉट इट? सो ये रीजन रहता है कि आप मतलब आप उसके बाद भी मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे आप क्यों जा रहे हो, बिकॉज हम एग्जिस्ट मतलब ऐसा मान के चलते हैं, और इवन रिसर्च करी गई है इसी वजह से एक टेम्परेचर स्टैटिक कर दिया गया है कि उस पर्टिकुलर के बाद माइक्रोब का एग्जिस्टेंस नियरली इम्पॉसिबल है, इस वजह से करते हैं। ओके, सो दैट Okay, thank you. या
ओके, सो मैंने आपको बता दिया जैसे सेल कल्चर के बारे में। फिर आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो जैसे सेल कल्चर में कुछ कॉमन मीडियाज हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम यूज्ड इन सेल कल्चर, सो अलग अलग एग्जांपल देंगे आपको। जैसे एलबी मीडिया लिख देंगे, डीएमईएम करके एक मीडिया लिख देंगे, पोटैटो अगार लिख देंगे, बहुत सारे एग्जांपल देंगे। सो इसका एक बेसिक अंदाजा पढ़ लीजिए थोड़ा सा सेल कल्चर के बारे में। मतलब नॉर्मल सेल कल्चर लिखेंगे तो उसके बारे में ना बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस, बहुत बेसिक सा आउटलुक और ओवरव्यू आ जाएगा, बस उतना पढ़ना बहुत है। जैसे सेल कल्चर में एक मीडिया यूज होता है कॉल्ड एज DMEM, सो दैट्स अ मीडिया व्हिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड, बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली सेल कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है वो मीडिया। सो या दैट विल बी द आंसर इन दैट केस। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोलॉजी। इकोलॉजी में अगेन जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए बताया, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से सब छोटी 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 चीजें पढ़ के रखिए। जैसे इकोलॉजी में let's just like I'll just ask you the question and just बताते जाओ उसके हिसाब से जिसको जो आता है। इकोलॉजी टर्म किसने दी? Like the term ecology was given by Reader, coined by yeah, it was coined by Reader. it was coined by Ernest Haeckel. The term was coined by Ernest Haeckel. Okay, okay. Yeah, Ernest Haeckel. The term was coined by Ernest Haeckel, and who is known as the father of modern ecology? Odum. Odum, correct. तो इसी तरीके से वही बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि वही सब बताया। नेक्स्ट अगेन मैं आपको आंसर दिखा दूंगी, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज अ फूड चेन, व्हाट इज अ फूड वेब। ये पीएचडी वालों के लिए और अच्छा है। रीजन बीइंग मतलब जब आप पेपर दोगे, पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जब इंटरव्यू होता है पीएचडी के बाद तो वो तो सब्जेक्टिव ही होगा। दे माइट आस्क यू सम ऐसे बेसिक क्वेश्चंस। सो या अगर हर मतलब जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप एग्जाम पेपर दे रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड की ना थोड़ी तैयारी करके जाइएगा। नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं उनके बारे में पूछ लेंगे। कौन सा पिरामिड लाइक जस्ट आई विल जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। 3 पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता? पिरामिड ऑफ एनर्जी। करेक्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देन इसके अलावा पूछा जा सकता है 10% लॉ क्या कहता है। देयर इज अ लॉ ऑफ 10% इन इकोलॉजी, सो व्हाट डज दैट मीन। सिमिलरली बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। सो दीज आर द आंसर। सो फूड चेन क्या होता है? इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ईच क्रीचर ईट्स द वन बिलो इट एंड देन फाइनली बिकम द सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबव इट। सिमिलरली जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ रिलेट करती है, दैट्स अ फूड वेब। Ecological pyramid is a graphical representation designed to show the biomass or bioproductivity at each trophic level. Then 10% लॉ है कि ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूम्ड अप्रोक्सीमेटली, जब भी किसी को आप खाते हैं मतलब जैसे नेक्स्ट चेन पे जो भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे छोटे वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कोई खाता है, then 10% of the energy in the food is fixed into their flesh and is available for the next trophic level. So when a carnivore or an omnivore in turn consumes that animal, only 10% of the energy is fixed in the flesh. तो वो 10% करके कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जिस से स्टार्ट हुआ उसमें 100% थी, सो 100 की 10 आ गई नेक्स्ट वाले में, उस 10 की 10% नेक्स्ट वाले में, उस 10 की 10% नेक्स्ट वाले में। सो दैट्स द 10% लॉ। एंड बायोमैग्निफिकेशन एज द टर्म एक्सप्लेन्स, मैग्निफिकेशन मतलब उसकी मतलब मैग्नीफाई हो जाएगा। सो इट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ अ केमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर और फूड दैट रिजल्ट्स इन अ कंसंट्रेशन ग्रेटर इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जैसे बहुत बेसिक तरीके से बताती हूँ कि मान लीजिए एक फूड चेन है, उसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैंने अगर आपसे ये पूछा कि एक केमिकल डाल दिया था मैंने पानी में, सबसे पहले वाले जानवर ने वो DDT या जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब मैंने कोई भी एक केमिकल डाल दिया, DDT डाल दिया या फिर एनी पेस्टिसाइड, एनी टॉक्सिक कंपाउंड, वो सबसे पहले वाले जानवर ने वो पानी पी लिया। तो मैं अब आपसे ये पूछ रही हूँ कि कौन से ट्रॉफिक लेवल वाले मतलब कौन से ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब आई एक्चुअली मीन कि मतलब कौन से वाले में सबसे ज्यादा वो केमिकल होगा। तो आप ऐसे एग्जांपल मतलब ऐसा आंसर इसका ये रहेगा द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, जो भी लास्ट होगा ना उस ट्रॉफिक लेवल का, जो भी लास्ट होगा उस फूड चेन का, उस वाले ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा DDT या फिर सबसे ज्यादा वो कंपाउंड होगा। सो दिस इज हाउ इट गोज फॉर बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन भी बढ़ता चला जाता है लेवल के हिसाब से। So this is it. These are the questions that I want you to focus upon. Microbiology, ecology, सब ऊपर से सबको सुपरफिशियली देखना है, लेकिन बेसिक ग्राउंड्स क्लियर करने हैं। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर में से ढूंढ के निकाले एंड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए आई वांट यू टू फोकस ऑन दीज।
And additionally, like this is it. I open the session to you now. आपको कुछ और पूछना है, so you can just ask anything related to the exam. कुछ preparation में परेशानी है, anything. Miss, I have one doubt. क्या? तो आपका डिग्री मार्क्स क्या तो भी वेटेज ऐसा कुछ इट शोज एन इम्पैक्ट ऐसे कुछ होता है? मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझी. आई मीन अभी डिग्री मार्क्स का वेटेज कुछ पीजी एंट्रेंस पर होता है और नॉट? नहीं, एंट्रेंस का कोई लेना देना नहीं है. एंट्रेंस का कोई लेना देना नहीं है. उससे एंट्रेंस आप एकदम सिंगल दे रहे हो. ओके फाइन. एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना हो? बिकॉज वी आर जस्ट फिनिश्ड अप. Kalyan, I believe they're done. So, वन मोर डाउट. क्या समझो? अभी एग्जाम में ओनली माइक्रोबायोलॉजी एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन आता है और कैन रिलेट टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. अदर सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चंस आ सकता है और क्या? ऑब्वियसली यस. ये तो मैंने तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी कवर किया. मैंने तो आपको माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन बताया. मैंने आपको बताया ना, आई evaluated few question papers and I got to know कि there are times that they're asking 3 questions from this section and sometimes they're just asking only single question. So similarly बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही हो रहा है. इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में ये लिखा था कि that you need to focus over the previous year question papers to know the weightage of each section. So इसीलिए पहले जैसे आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे, once you're prepared कि ठीक है आप you're going for this, so just start doing the previous year question papers. एक बार पैर अंदाजा ले लो कि हर सेक्शन का कितना वेटेज है. उसके बाद फिर ये देखो कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. उसके बेसिस पे यू विल गेट टू नो कि ठीक है ओके दिस इज गोइंग फाइन. बट हाँ, क्वालिटी स्टडी करने की कोशिश करो, क्वांटिटी नहीं. ओके थैंक यू सो मच. हाँ, अदर सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं. आई मीन एग्जामिनेशन पेपर में अदर सब्जेक्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन एग्जामिनेशन. यस आ सकते हैं. यही तो बता रही हूँ कि फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी. मैंने आपको शुरुआत में बताया था एसिड बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो भी तो मैं कह रही हूँ अभी जैसे मतलब आपको लगता है ये माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. और माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी में से तो अराउंड मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट 5 सवाल आ जाएंगे. उससे ज्यादा कुछ खास नहीं आएगा. 5 से 7 सवाल आ जाएंगे. बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं ना. एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री होता है और जैसे केमिस्ट्री की क्लास में मैंने बताया, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में मैंने एसिड बेस वाला चैप्टर हाईलाइट किया, केमिकल काइनेटिक्स बताया. सो 11th-12th में फोकस रहता है कहीं ना कहीं. पीएचडी वाले पेपर में फिर भी थोड़ा बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप मास्टर्स का एंट्रेंस दे रहे हो डेफिनेटली 11th-12th में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा. इसीलिए जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, डेफिनेटली पेपर सारे पुराने देखने की कोशिश करो. उससे आइडिया बढ़ जाएगा कि जेएनयू में क्या पूछते. जैसे जस्ट टेकिंग माय एग्जांपल, मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस दिया था यहाँ पे. मैंने मास्टर्स यहीं से करी है. सो मुझे पता था कि पीएचडी में क्या पूछा जाएगा. हमारे टीचर्स ने जो हमें मास्टर्स में पढ़ाया था, ऑब्वियसली दे आर दोज आर द ओनली टीचर्स जो पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं. उन्हीं में से किसी से क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है, उसी को शफल किया जाता है एंड देन वो हमारे सामने आ जाता है. सो मेरे को एक फेयर अंदाजा मेरे मास्टर्स की स्टडी टॉपिक से पता था कि क्या पूछ सकते हैं वो लोग. तो समहाउ पेपर वैसा सही था, इसलिए पीएचडी का एंट्रेंस क्रैक करना आसान था उस केस में. सो इसीलिए तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि वो चीज मेरे को कैसे काम आई थी. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे थे अपने टाइम पे भी एंड इट एक्चुअली वर्क. बहुत कुछ तो सिमिलर आ जाता है, बहुत चीजें एकदम एग्जैक्ट सिमिलर आ जाती है. बट हम ऐसा मान के नहीं चल रहे. दैट्स व्हाई आई से कि द क्वेश्चंस माइट रिपीट और माइट नॉट रिपीट, बट यू बी प्रिपेयर्ड. Kalyan, I think they're done. You can take over the session. I wish every one of you all the very best. And please stay in contact with these people. They can help you at any time with all this. Okay. Thank you, Juhi ma'am. All the aspirants, if you have some doubts, you can ask in our groups. Okay, we will share with Juhi ma'am and she will answer any kind of doubts you have. Okay, that group is not made for sitting ideal. Okay, you can even send the papers you are solving. You can send those screenshots of those questions in that group. We will try to make as soon as possible your answers and send it back to you in that group. Okay,
So better you should start your preparation at a full speed, not at a slow speed. Okay. Anything, Ambushar is here, and he might be telling something to you regarding the types of forest and ecological aspects of the papers. Ambuj, can you tell? Hello. Hello, Ambuj. Hello. Yes, for sure. That's what I was writing there in message Yeah. section. Can you tell again here in this chat? Yeah. That's what I was telling them. कि in the forest system, many questions usually arise. ये जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. जैसे एक तो फिनोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस फॉरेस्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं. आपको पूछेगा डेसिडुअस अलोंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर आप ब्रॉड लीफ या नीडल लीफ फॉरेस्ट में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बेसिकली पूछते थे. मतलब यूजुअली आते हैं वैसे. दूसरा ये है कि क्लाइमेट बेस्ड या उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर बेस्ड फॉरेस्ट टाइप्स जैसे हैं, लाइक टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, आपके ये सेमी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड एल्पाइन अर्बन फॉरेस्ट वगैरह में किस तरह प्रोडक्टिविटी को लेकर के, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल वो सारे बहुत आते हैं. थियरीज और मॉडल्स के बारे में क्वेश्चंस यूजुअली बहुत प्रोबेबली आते हैं. जैसे थियरीज में तो बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड थियरीज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, और मॉडल्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एंड अदर टाइप ऑफ मॉडल्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चन काफी प्रोबेबल हैं. तो मतलब अगर हम ये चीजें नोट भी कर लें और एक बार हम व्यू कर लें, शायद नोट्स में एक पीडीएफ वगैरह भेजा जाएगा आपको, मैं भेज दूंगा. तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाला है हमारे यहाँ की फैकल्टी जमीना उनका है, उससे आपको मिल जाएगा कुछ. तो उसमें आप एक बार व्यू भी कर लोगे तो आप उनके क्वेश्चंस इजीली कर सकते. तो बस ये चीज नोट हो जाए किन किन एरियाज में कवर हो रहे हैं इकोलॉजी वाले क्वेश्चंस. तो ये जरूर ध्यान रखें कि फॉरेस्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चंस, मॉडल एंड थियरीज बेस्ड क्वेश्चंस, और जो फॉरेस्ट टाइप है उनमें मिस ये कर देते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखना शुरू कर देते हैं. जैसे सिर्फ आप या तो आप सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर या क्लाइमेट बेस्ड फॉरेस्ट ही देख लेते हो, टेम्परेट या आपके सब ट्रॉपिकल या अल्पाइन इस टाइप के फॉरेस्ट ही देख लेते हैं. तो आपको ये भी कवर करना है कि फिनोलॉजिकल बेसिस पे जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं, जैसे आपके ये एवरग्रीन, डेसिडुअस, इन टाइप फॉरेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रोडक्टिविटी, अगर दूसरे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कार्बन पूल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्हीं फॉरेस्ट टाइप्स को लेकर के, इनकी हायरार्की क्या है प्रोडक्टिविटी में, किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा और क्या है. ये एक सीक्वेंस वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो यूसी नेट और इन सब में पूछा जाता है कि किसकी प्रोडक्टिविटी किससे ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन. तो इन पे थोड़ा इकोलॉजी वाला पार्ट है, फॉरेस्ट में इन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो मतलब मिल जाएगा चीजें, क्वेश्चन, मॉडल्स, थियरीज. तो यही पर्टिकुलर है, बाकी सब चीजें तो आती रहती है. ये लोगों दिमाग में रहता है कि हाँ ये है पिरामिड्स और फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह, इनसे बेस्ड एक आध क्रूशियल क्वेश्चंस आएंगे. बाकी ये चीजें हैं जो पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करने वाली थी, मैंने बताई. So I thank you both Ambuj and Juhi ma'am. So here we will end our lecture. And any kind of doubt you can ask in the group itself. Don't hesitate to ask. Okay. So you can leave now. Yeah, all the best, everyone. Thank you, ma'am.